106 we are getting this appearance. Now if you are interested to hide it, so first of thing you can use here display, and display you can give none, display colon none. Let's see, it's a hide. And if you are using block, 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 this will be displayed. The same thing we need to do here. So you should go for a script tag, a script type text slash javascript, javascript. And here we are using a script tag, taking function show. I am taking the name show. Okay, let me change, not show. I am taking change or anything else. Okay, fun, very simple name, fun. And what I want two buttons here. Input type, button. In this button value equals to, we need to write show. Show is responsible to visible any section. So I have taken similarly paste here, not two times, only one time. So let me remove, and here we should write hide. Let's see class, we have two functions, show and hide. What I want on click event, and I want to call fun. And similarly here I want on click event and then fun. Any doubt anyone till this? No, sir. No, sir. No, sir. Class, class, is it audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Fine, great. So what I told you, we had taken this data like f1 and f1. Now the point is what, we can create two different functions like f1 and fun2. One way to write this code. So what we need to write, one more function we need to write like fun2. And in this fun2 we will do some work, in fun1 we will do some work. So what the work we have, so we need to take this div and we need to make it hide. So that section I am taking the name of this div, section, section. So if you are interested to access here, so document dot get element by id. And what we need to check here, so we need to actually take the reference of section. So any doubt anyone? No, sir. No, sir. Very good. Can we write like this, style dot this? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So display equals to, okay, so if it's show button, so we need to write block. I told you for show we need to write block. The same way we need to go for here. So display block, that means content should be visible, and display none, it means it should be hide, like this. Let's see, there is two button, click show, click hide, click show, click hide. And if you are interested, so you can make it at the top, जैसा कि आपके आउटकम में था. आउटकम में कुछ ऐसा ही था, लाइक ऐसा क्रिएट करना था. So let's see, now you can see here, hide show, hide show, hide show. Any doubt anyone? No, sir. No, sir. Very good. So take the screenshot for your further reference, and if you anyone have doubt, so you can ask, there is no problem. हेलो सर. Yes. सर 11 नंबर असाइनमेंट में जो सेकंड और थर्ड नंबर था, उसमें सर जैसे डोंट रेफर लाइक दिस. प्रोग्राम बताइए, ऐसे आप रेफर करेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा. सर 11 नंबर असाइनमेंट के थर्ड में जो था क्वेश्चन, Hers, I am telling to you again and again, don't refer like Not audible, sir. सर आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही, सर. Yes, sir. I am asking like that कि
जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ये रेफर करते हो आप लोग इस तरह 11 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। आई कांट टेल यू लाइक 11 नंबर एंड 2 नंबर। आप बताइए सीधे सीधे प्रोग्राम क्या है। मैं ऐसे नहीं समझ पाऊंगा आप 11 नंबर और 2 नंबर बताएंगे तो। प्रोग्राम बताइए क्या है। सर प्रोग्राम में जो कैलकुलेटर में ऐड करने वाला था और मल्टीप्लाई करने वाला सर, उसमें सर जैसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में इंटर टेक्स्ट लिखा हुआ था और जब हम बॉक्स पे क्लिक करते थे और फर्स्ट लेटर जैसे टाइप करते थे तो इंटर टेक्स्ट हाइड हो जाता था, वो सर कैसे होगा? हर्ष ये 3 बार मैं बता चुका हूँ बेटा, बताया HTML5 में प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी होती है, उसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है हर्ष? ओके सर। अभी परेशान मत होइए उसके लिए, बाकी काम करिए एक्शन। HTML5 में प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी होती है, उसको लगा लेंगे, दिखने लगेगा बॉक्स पे टेक्स्ट। असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था, बताइए। हेलो सर। हाँ हाँ बताइए, प्रॉब्लम बताइए। सर असाइनमेंट में वो क्वेश्चन था, फिर कैसे उसको बनाएंगे? मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स पे अभी मत बनाइए, बोल तो रहा हूँ प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी है, लगा लीजिए। एक तो मैंने ये भी कहा मत लगाइए, अगर आप बहुत परेशान है तो बताया तो प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी है, लगा लीजिए। प्रॉपर्टी लिखना आता है हर्ष? यस सर। कैसे लिखा जाता है? ओपन टैग में प्रॉपर्टी लिख देंगे, अगर CSS रहेगा तो जैसे CSS नहीं पूछ रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ, CSS नहीं पूछ रहा हूँ, प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ। प्रॉपर्टी लिखना आता है ना? आपने कहा ओपनिंग टैग में लिखते हैं, तो जाइए इनपुट टैग में प्लेस होल्डर इक्वल टू अपना नाम लिखिए, देखिए दिखने लगेगा या नहीं दिखने लगेगा। इतना क्यों एक ही चीज बोल नहीं रहे हैं? हर्ष मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप इनपुट टैग पे जा करके प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी लिख करके अपना नाम लिखिए और अपीयरेंस देख लीजिए। प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इनपुट टैग, आप मुझे समझ में आ जाता है एक बार में कि आप क्या पूछ रहे हैं और आप क्यों परेशान हैं। समझ में आया हर्ष? हर्ष आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करके देखिए, तुरंत करके देखिए। एक ही चीज को नहीं होगा, एक ही बार में बताऊं प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी है, उसको लगाइए। एक ही बातें आप लोग पकड़ के मत बैठा कीजिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि लगा के देख लीजिए। और ये भी कहा कि उसको अभी नहीं लगाना है, आपको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इच्छा है तो अभी लगा लीजिए, पर मैं जब HTML5 बताऊंगा तो बताऊंगा इन सारी चीजों को। फिर भी इच्छा है बहुत, मतलब नहीं सर अभी तो अभी करना है, तो इनपुट टैग में जाइए, प्लेस होल्डर इक्वल टू लिख लीजिए, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो विजिबल हो जाएगा। हर्ष देख लीजिए, हो जाए तो बता दीजिएगा। बताइए क्लास, और कौन क्या पूछ रहा है? सर जैसे कि एक ही बटन से दोनों शो और हाइड कैसे होना? ये मैं बता दूंगा, तो आपको जो पासवर्ड वाला कोड दिया है तो वो तो आप कैसे बनाएंगे? सर हम किए हैं, जैसे कि नहीं जैसे नहीं हो गया रोहित, मतलब सेम टू हो गया, लेकिन ऑन क्लिक पे मतलब कि शो वाला कहाँ? यस सर। मेरी बात सुनिए प्लीज, आपने पासवर्ड वाला कोड कर लिया है? यस सर। एक ही बटन पर शो हाइड दोनों हो जाए, मतलब ऑन क्लिक पे शो हो रहा है पर ऑन डबल क्लिक पे हाइड हो रहा है। पहले करिए ना, इसीलिए तो दिया है, और हर चीज हम ही बता देंगे तो आप कैसे करेंगे? पहले इसको करिए। सर बहुत मेहनत की उस पर। कुछ नहीं मेहनत किया आपने, मेहनत किया होता क्या सोचा है बताइए, इसके लिए क्या सोचा है, क्या क्या सोचा है आपने? बटन हमने एक ही बनाया था और उसमें फंक्शन में उसको दे दिया था सर वैल्यू दूसरा हाइड करके वैल्यू को, तो वो काम कर रहा था, लेकिन शो में हम ऑन क्लिक और मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने क्या डिफरेंट सोचा है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर डिफरेंट सोचे थे कि जैसे कि एक ही बटन मैंने बनाया, 2 बटन बना रहा था तो काम हो रहा था, लेकिन मैं बार बार पूछ रहा हूँ रोहित बेटा, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। देखिए मैं एक ही चीज पे बार बार इसलिए नहीं बात करना चाहता, आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, एक बटन पे शो हाइड कराने के लिए आपने कहा मैंने बहुत मेहनत की है, तो उसमें बताइए आपने क्या क्या सोचा है, उसके लिए क्या क्या व्यू सोचा है जो अब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? सर इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, हाइड बटन को हम हाइड करना चाहते थे, हटाना चाहते थे वहां से, तो वो नहीं हो रहा था। रोहित आपकी वॉइस लैग कर गई, आप क्या बोले पता नहीं चला। सर बोल रहे थे ना कि जैसे कि हाइड बटन जैसे कि लगाए थे, 2 बटन यूज किए थे, तो एक बटन को बार बार 2 बटन पे जा रहे हैं बेटा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ एक बटन पे जब शो हाइड कराना है, प्रॉब्लम आपकी यही है ना? यस सर।
तो इस प्रॉब्लम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने क्या क्या सोचा ये मैं पूछ रहा हूँ। आप बार बार 2 बटन 3 बटन 4 बटन कर रहे हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने कहा कि सर हमने बहुत मेहनत की है, तो उसके लिए क्या क्या लॉजिक सोचा आपने? लॉजिक बताइए तो मैं बताऊँ आप क्या सही सोच रहे हैं क्या गलत सोच रहे हैं। आपको इम्प्रूव करना है रोहित, असाइनमेंट नहीं करवाना है। असाइनमेंट करवाना होता तो हम अब आपको असाइनमेंट देते ही क्यों? सीधा सा है, जिस असाइनमेंट को हम ही को करना पड़े, हर बार हर एक कोड हम ही को लिखना पड़े, तो आपको क्यों देंगे? आपके लॉजिक को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसमें लॉजिक क्या-क्या सोच चुके हैं और हमें समझ में तो आया कि आप सोच क्या-क्या सकते हैं। दैट्स आई एम आस्किंग कि एक बटन के लिए आपने क्या किया है? एक बटन के लिए सर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट एफ डॉट बटन बटन का वैल्यू सर चेंज कर दिया, हाइट, मतलब एक फंक्शन में हाइट डाल दिया और दूसरा फंक्शन में शो। नहीं तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं है ना कि 2 फंक्शन, आपका तो प्रॉब्लम ये है कि एक करेंगे, ये है ना प्रॉब्लम? यस सर। प्रॉब्लम यही है ना रोहित? तो जैसे- एक फंक्शन से करने के लिए क्या-क्या लॉजिक सोचा आपने? एक फंक्शन से करने के लिए एक फंक्शन नहीं सर, 2 फंक्शन का यूज किया है। कैसे 2 फंक्शन से कैसे होगा? एक बटन से 2 फंक्शन कॉल करा रहे हैं क्या? तो हाँ वही किए हैं, तो इसीलिए नहीं हो रहा है क्या सर। होगा हम इससे? रोहित इससे होगा क्या? देखिए आपने शो अगर कॉल कर लिया, मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड की वैल्यू, मान लीजिए आपने ऑन क्लिक पे 2 फंक्शन कॉल कर लिए, शो और हाइड, तब दोनों ऑन कॉल कर क्लिक लेंगे। पे नहीं हो रहा है 2 सर, एक ही हो रहा है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप 2 फंक्शन कैसे कॉल कर सकते हैं? और अगर आपने 2 कॉल कर लिया तो भी प्रॉब्लम है। 2 कॉल कर लिया तो एक अगर शो कर रहा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक कॉल होकर के वो हाइड कर देगा, और अगर आपने फर्स्ट हाइड को कॉल किया होगा तो दूसरा वाला अपने आप शो कर देगा। तो आपका तो कुछ चेंज ही नहीं मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स पे। और वही क्या तो सोचा है प्रॉब्लम इसके लिए? और क्या सोचा है? सर, मतलब कि 2 इवेंट लगा दिए हैं, एक ऑन क्लिक पे फर्स्ट फंक्शन कॉल कर दिए हैं और ऑन डबल क्लिक पे दूसरा कर दिए, तो ऐसा वैसे करना काम नहीं तो हो था ना, रहा है। ऐसा करना नहीं था ना। नहीं सर, करना, तो क्या करें, नहीं चलिए हो रहा था। और बताइए, और कुछ सोचा है? और कुछ नहीं सोचा। चलिए अब मैं आपको एक सोचने के लिए एक व्यू देता हूँ। ये देखिए सामने लिखा हुआ है शो, किस चीज पे लिखा हुआ है? वैल्यू में, वैल्यू का नाम है सर। किस चीज पर लिखा हुआ है रोहित? बटन पर। ये तो बटन के ऊपर तो शो कर रहा है। बिल्कुल, ये बटन पे लिखा है, और ऐसे ही हाइड कहाँ लिखा हुआ है? ये भी बटन पे है। वेरी गुड। और हाइड और शो हम लोग कर किसको रहे हैं? बटन के वैल्यू को नहीं, हाइड शो किसको कर रहे हैं? हाइड की वैल्यू को थोड़ा ना हाइड शो कर रहे हैं, नहीं, ये तो बटन लिखा को हुआ शो कर रहे हैं, बटन को हाइड करना है ना। इस कोड में बटन को हाइड किया जा रहा है। इस कोड में सर हाइड का इस कोड में पूछ रहे हैं, इस कोड में किसको हाइड शो किया जा रहा है जो सामने लिखा हुआ है? इस कोड में हाइड सर बटन को ही किया जा रहा है। अच्छा करके देखिए जरा, अगर आप कह रहे हैं तो। बटन क्या पढ़ते हैं आप लोग, मुझे नहीं समझ में आता। ये बटन देखिए हाइड हो गई, ये देखिए हाइड हो रही है बटन, ये बटन हाइड हो रही है, देखिए। नहीं सर, कंटेंट, अच्छा वो कोड हम सिर्फ सर उसको ध्यान दे रहे हैं ना, पूरा कोड को नहीं देखा। हम एक बात बता दें, हमेशा टाइम ना खराब करना हो, ज्यादा सीखना हो तो मैं क्या पूछ रहा हूँ वो सुना कीजिए। एक क्वेश्चन मेरा था कि शो कहाँ लिखा हुआ है, आप नहीं बता पाए, बटन पे लिखा हुआ है। हाइड कहाँ लिखा हुआ है? बटन पे लिखा हुआ है। शो हाइड कर किसको रहे हैं? डीआईवी को। यही तो कर रहे हैं रोहित। Yes, अब ये बताइए कि अगर एक फंक्शन में दोनों को लिखना होगा तो क्या हम ये नहीं चेक कर सकते हैं कि जब बटन की वैल्यू शो हो, क्योंकि जब ये क्लिक हो रहा है, देखिए जब ये क्लिक हो रहा है तो हम चेक कर सकते हैं कि जब बटन की वैल्यू शो हो तो यहाँ पर शो वाला ऑपरेशन हो जाए, और जब बटन की वैल्यू हाइड हो, क्योंकि आप लोग 2 बटन से नहीं कर रहे हैं उस काम को, उसको एक ही बटन से कर रहे हैं, तो इसी बटन को हमें कभी शो दिखाना है कभी हाइड दिखाना है। तो हम क्या करें कि जब ये शो हो तो यहाँ पर शो वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, और अगर इसकी वैल्यू हाइड हो तो यहाँ हाइड वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते हैं रोहित? ऐसा सर इक्वल्स बिल्कुल एफएल से होगा, बिल्कुल एफएल से होगा। अब लीजिए मैं कर दे रहा हूँ, जिससे मैं नहीं चाहता कि आप लोग दोबारा जो है मुझे परेशान करें एक छोटे से कोड के लिए। ये सब करिए, नहीं करेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। मेरे से कोड लिखवा लेने से कोई प्रोग्रामर नहीं बन जाएगा। प्रोग्रामर बनने के लिए अभी पे एफर्ट देखिए, जब तक थिंकिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं, तो थिंकिंग के लिए आपको वर्क करना होगा। अब देखिए बटन की वैल्यू एक्सेस करनी है, अगर बटन है तो फॉर्म टैग का होना जरूरी है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए क्लास? मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ। Yes, sir. 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 Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखिए फॉर्म लगा दिया और एफआरएम लगा दिया। अब
बटन का क्या नाम भी होना जरूरी है अगर बटन की वैल्यू एक्सेस करनी है? यस सर। यस सर। ये देखिए लिख दिया Yes. BTN, वेरी गुड, ये लिख दिया BTN। और देखिए दूसरा बटन तो हमने हटा ही दिया है, हमने ये कह दिया कि BTN के क्लिक पर फन को कॉल करो, और फन में लिख रहे हैं कि अगर डॉक्यूमेंट पे रखे, FRM पे रखे BTN की वैल्यू अगर इक्वल्स टू, देखिए SHOW को कैपिटल में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्यों एस को कैपिटल में लिखा है? क्योंकि कैप्शन में भी एस कैपिटल लिखा हुआ है, तो हम इसी कैप्शन को ही तो चेक कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू आपने यहाँ से जो सेट किया है उसी को कोडिंग में ये एक्सेस कर रहे हैं कि अगर डॉक्यूमेंट के FRM के BTN की वैल्यू अगर 100 के इक्वल हो तो ये ब्लॉक हो जाना चाहिए, यानी विजिबल हो जाना चाहिए। और विजिबल होने के बाद क्या होना चाहिए? विजिबल होने के बाद बटन पे लिख जाना चाहिए हाइड। तो अगर बटन पे हाइड लिखना है तो फिर से डॉक्यूमेंट डॉट FRM डॉट BTN डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ लिख कर आ जाए हाइड, ये लिख दिया हाइड। ध्यान दीजिएगा, सो को इक्वल चेक कर रहे थे, यहाँ इक्वल चेक करने के लिए डबल इक्वल लगाया था कि अगर बटन की वैल्यू 100 के इक्वल हो जाती है तो ये विजिबल हो जाना चाहिए और ये हाइड हो जाना चाहिए, यानी बटन के ऊपर क्या लिख जाना चाहिए? हाइड, यानी DIV शो हो जाए लेकिन बटन के ऊपर लिख क्या जाए? हाइड। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? नो सर। No, sir. नो सर। वेरी गुड। अब देखिए यही यहाँ भी करना है, एल्सेफ अगर यहाँ पर हाइड लिखा हो, अब ध्यान दीजिएगा एच जो है यहाँ का हाइड का कैपिटल ये थे, तो यहाँ भी हाइड ही चेक करेंगे कैपिटल में। अगर ये कैपिटल में अगर है हाइड तो हम क्या करेंगे? DIV को हाइड कर देंगे और फिर से डॉक्यूमेंट पे रखे फॉर्म को जिसका बटन का नाम BTN है उसकी वैल्यू को अब फिर शो कर देंगे, यानी जस्ट अपोजिट वर्क। अब ध्यान दीजिएगा जब भी बटन पे क्लिक पे शो लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये फंक्शन तब कॉल होगा जब आप क्लिक करोगे, तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, ये देख ले रहे हैं कि अगर ये फंक्शन कॉल हुआ है तो बट की वैल्यू क्या है। अगर वो है तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, यानी DIV को शो करा दो और बटन के ऊपर हाइड लिख दो। इसी तरह एल्सेफ अगर ऐसा नहीं है, अगर वैल्यू हाइड के इक्वल है तो सेक्शन को हाइड कर दो और बटन के ऊपर शो लिख दो, यानी जस्ट अपोजिट वर्क। इसको रिफ्रेश कर लीजिए, ये देखिए शो लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, ये देखिए शो लिखा हुआ है, क्लिक किया है, देखिए हाइड हो गया, लेकिन ये हाइड नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं क्यों नहीं हाइड हुआ है। देखिए ये देखिए शो हाइड, ये अपोजिट हो गया। आई थिंक हम लोगों ने कुछ गलत लिख दिया है। शो पे क्या कर दिया है? डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, अगर डिस्प्ले ब्लॉक किया है तो बाय डिफॉल्ट ये हाइड होना चाहिए ना, बाय डिफॉल्ट हाइड होना चाहिए। पहला ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं? पहला ऑपरेशन हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्लास? पहला ऑपरेशन ब्लॉक कर रहे हैं ना। Yes. हाँ, क्योंकि देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट यहाँ शो लिखा है तो DIV बाय डिफॉल्ट हाइड होनी चाहिए, तो यही दिक्कत थी। अभी देखिए हाइड है, शो करा दिया, ये देखिए हाइड शो, हाइड शो, हाइड शो, यानी बटन का कैप्शन भी चेंज कर रहे हैं और सेक्शन भी चेंज कर रहे हैं। Yes, इज इट sir. क्लियर क्लास? Yes, sir. कोई टफ कोड था क्या? No, sir. हाँ, तो बस लॉजिक है, स्क्रीनशॉट करिए इसका भी इन क्लास। Done, sir. ये स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? No, sir. दैट्स बेटर, No, sir. दैट्स बेटर। ओके, तो अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग नोटिस बोर्ड की बात करेंगे और एक 105 HTML पे और वर्क करना है। 105.html पे। ओके, तो पहले उस पे ही वर्क करते हैं, बिकॉज उसको कंप्लीट करके तब हम लोग आगे जाएं, बेटर होगा। ये आप लोगों ने अच्छा रिमाइंड कराया। 105.html, वेरी गुड क्लास। सो लेट्स सी, दिस इज द पेज, सॉरी क्लास, सो दिस इज द पेज दैट वी हैड क्रिएटेड। अब आइए 105 को रन भी कर लेते हैं अगेन, तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये अपीयरेंस होगा। कल हम लोगों ने ये बना लिया था कि इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, और एम्प्टी के बाद देखिए कर्सर भी आगे नहीं जा रहा था। अब यहाँ कर्सर अगर टाइप करके आगे जा रहे हैं, मतलब कुछ टाइप करके तब आगे जा रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम, अभी बेटर है। अब ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए है। अब देखिए एक लोग बहुत देर से परेशान थे, तो जो लोग परेशान हो उनका सोल्यूशन कर देना चाहिए। परेशान थे प्रॉपर्टी लगाना नहीं आता, ये देखिए प्लेस होल्डर लिख दिया, इसमें लिख दिया एंटर नेम। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों से कहा कि ये प्रॉपर्टी HTML5 में इंट्रोड्यूस की गई है, तो अभी ना बताने का रीजन यही था कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएं। तो देखिए प्लेस होल्डर में यहाँ लिख दिया एंटर नेम, होना यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि ये तो पासवर्ड के लिए है,
तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, इसको इंटर पासवर्ड लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं इंटर पासवर्ड। और नेम वाला बॉक्स ये है, तो इस पे हमने लगा दिया एक और प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर इंटर नेम, और ये रिफ्रेश कर दिया। क्या यही पूछ रहे थे आप? यस सर। ओके फाइन। नो सर, हाँ, क्या ये नहीं पूछ रहे थे आप? हम सर जिससे पूछ रहे थे इसमें सर वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा। हम पूछ रहे थे सर जैसे आप हम इनपुट में क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे पहला लेटर लिखेंगे तो इंटर नेम हाइड हो जाना चाहिए। ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये इस पे आपने टाइप करके देखा क्या? ये देखिए टाइप किया, हाइड हुआ। अब बताइए यही हाँ, क्या कह रहे हैं अब बताइए। हम ये जैसे देखिए। सर हम ब्लैंक कर देते थे, उसके बाद करते थे तो लगता था वो कट रहा है, कटने के बाद वो ऐसा आता मतलब? था। मतलब सर जैसे हम इक्वल टू कर दिए, उसमें इक्वल टू में हम ब्लैंक कर अभी दिए। अभी जैसे देखिए click पहले करते थे, आपको ये चाहिए या नहीं, ये इंटर नेम लिखा हुआ है देखिए, और जब इस पे हम कर्सर ले जाकर Yes, के यहाँ sir. टाइप कर रहे हैं, हट जा रहा है ना। हाँ, तो आपको यही Yes, चाहिए sir. था। पहले आप कहने Yes, लगे sir. ये नहीं चाहिए था, ये प्लेस हमको यही चाहिए था सर। अभी बताइए, एक मिनट वेट, पहले हर्ष से बात करने दीजिए। हाँ हर्ष, अभी बताइए, यही तो Yes. प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी मैंने बताया ना, ऐसे ही तो लगाते हैं प्रॉपर्टी। Yes, बताइए, sir. अभी भी कोई डाउट है? Yes, sir. अब आप बताइए, अब आप क्या कह रहे थे कि मैं कर रहा था तो कट जा रहा था वो? कर रहे थे वो बोलिए, जैसे बोलिए, फंक्शन बोलिए। कॉल होता था, एक फंक्शन सर गेट वाला बना लिए थे। उसके बाद हम जैसे फॉर्म नेम डॉट वैल्यू नेम करके इक्वल टू में डबल कोट के बीच ब्लैंक छोड़ देते थे। हाँ, कर सकते जैसे हैं, इसमें आते कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के क्लिक पे उसका कोड को हाइड कर दें, ओके सर। कर सकते किया में ये आपको HTML5 ने प्रॉपर्टी दे दी 2014 से, तब फिर अब ये यूज किया जाता है, ठीक है? यस सर। दैट्स गुड। तो देखिए क्लास, हम लोगों ने अभी नेम के लिए बना लिया था। नेम के लिए हम लोगों ने ये बनाया था कि लाइक कि हमारा नेम जब है, लाइक नेम जब भी हम लोग दें तो नेम चेक हो जाए, और ये चेक हो जाए कि अगर वो ब्लैंक है तो एरर आ जाए हमारे पास, और हम लोग एरर गेट कर पा रहे थे। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्लास? नो सर। वेरी गुड, No, sir. वेरी गुड। आई एम आस्किंग टू क्लास, तो 2-4 लोग रिप्लाई करते हैं आई एम आस्किंग कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। Very good. और एक और बना रहे हैं, अब ये चेक नेम की जगह पे इसका नाम रखेंगे चेक पासवर्ड। चेक पासवर्ड, पासवर्ड चेक कराना है। अब पासवर्ड चेक कराने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारा पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का हो। तो यार देखिए, सबसे पहले आपको जानना है पासवर्ड फील्ड का नाम है पासवर्ड। तो अगर पासवर्ड फील्ड का नाम पासवर्ड है तो हम लोगों को यहाँ लिखना होगा पासवर्ड, इसलिए कि हम लेंथ गेट कर सकें, यानी जो हम लोगों ने यूजर नेम में किया है वही कर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। तो जब लेंथ n में आ जाएगी तो मैंने आपसे कहा n जो लेंथ है वो कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो हमने दे दिया कि अगर n अगर लेस देन 8 है तो हम लोग एरर दिखाएंगे। अब एरर नेम नहीं दिखाएंगे, अब एरर नेम में दिखाएंगे एरर PWD, यानी पासवर्ड की एरर दिखाएंगे। और पासवर्ड की एरर क्या दिखाएंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैसेज होना चाहिए पासवर्ड should be of या should be At least at least 8 कैरेक्टर। ऐसा हम लोगों ने मैसेज दे दिया कि पासवर्ड क्या होगा, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होगा, और फिर ये पासवर्ड वाली फील्ड पे ही फोकस हो जाना चाहिए ऐसा। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में कुछ नहीं करना है, एल्स में तो कुछ भी नहीं करना है, हटा दिया एल्स। यानी क्या कह दिया कि अगर ये फंक्शन कॉल हो चेक पासवर्ड, तो एक पासवर्ड नाम की फील्ड का लेंथ निकाल लेगा और उसको चेक कर लेगा, अगर वो 8 कैरेक्टर से नीचे है तो हम मैसेज दिखा देंगे पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, और फिर पासवर्ड वाली फील्ड में ही फोकस कर देंगे। तो ये हम लोगों ने ये ब्रैकेट बंद कर लिया किसका, फंक्शन का, चेक पासवर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम
हमारे पास होना चाहिए एरर PWD, जो हमारे पास नहीं है अभी, क्योंकि देखिए नेम वाला बॉक्स है, इस नेम वाले बॉक्स के बगल में हमने एक ये पैराग्राफ बना लिया था, और बना लिया था इस वजह से हमें ये एरर नेम वाला मिल रहा था। द सेम थिंग आई वांट कि लाइक इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद, सॉरी इस पासवर्ड फील्ड के बाद हो, तो इस पासवर्ड फील्ड के बाद यहाँ एरर दिखाना है, तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर लिया और इसका नाम रख दिया एरर पासवर्ड। एरर नेम नहीं है, एरर PWD, एरर PWD। तो अगर ये पैराग्राफ है तो इसी पे एरर दिखा रहे हैं कैसे, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसका आईडी ले लिया है और उस पर दिखा रहे हैं पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, और यहाँ बता दिया कि पासवर्ड पे फोकस कर जाए। बताइए क्लास, किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. आइए रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इस पे अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो ये एरर है, अगर हमने स्ट्रिंग दे करके और तब आगे बढ़े तो दैट्स फाइन। अब देखिए 1 2 दे के आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी देखिए काम नहीं किया, रीजन कॉल नहीं किया है। तो आपने पिछली बार अगर आपको याद हो तो इस पे देखिए ऑन फोकस पे कॉल किया था, दूसरे वाले कंट्रोल पे, दूसरे के कंट्रोल पे कॉल किया था। ऐसे ही कंफर्म पासवर्ड के कंट्रोल पर हम लोग ऑन फोकस कॉल करेंगे पासवर्ड के एरर के लिए। यहाँ लिख दिया ऑन फोकस और यहाँ कह दिया ऑन फोकस पे कॉल कर लो चेक PWD को। चेक PWD नाम का फंक्शन है, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। फंक्शन का नाम चेक पासवर्ड, फंक्शन का नाम है चेक पासवर्ड। तो हम लोग देखेंगे चेक पासवर्ड। ये चेक पासवर्ड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कब? जब हम लोग दूसरे वाले कंट्रोल पे फोकस्ड हो रहे हैं, यानी कंफर्म पासवर्ड वाले के फोकस पे कॉल कर रहे हैं, और जब कॉल कर रहे हैं तो ये पहुंच जाएगा कहाँ पर? फंक्शन पे, चेक पासवर्ड पे। काउंट करेगा पासवर्ड वाली फील्ड का लेंथ और लेंथ करके आपको बता देगा। अभी ध्यान दीजिएगा ये नॉर्मल कलर से आएगा, बट डोंट वरी, हम लोगों को चेक ही करना है। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ एंटर कर दे रहा हूँ और यहाँ देखिए पासवर्ड 2 कैरेक्टर का दे रहा हूँ। ये देखिए एरर आ गया, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, लाइक नई लाइन से आ रहा है और रेड से नहीं आ रहा? क्योंकि देखिए जो हम लोगों ने ये बनाया था अभी, ये बनाया है एरर पासवर्ड नाम का है। ये देखिए एरर PWD, इस नाम का हम लोगों ने कोई CSS डिफाइन नहीं की थी, CSS डिफाइन की थी एरर नेम की। हैव यू रिमेंबर क्लास? यस सर। यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। ये देखिए वेरी गुड, ये देखिए मल्टी सेलेक्टर की तरह मैं यहाँ पर एरर PWD की आईडी भी बता दिया, यानी एरर PWD और एरर नेम दोनों का ही डिस्प्ले इन लाइन हो और कलर रेड हो। अब देखिए क्या होगा इससे। अब अगर किसी ने नेम एंटर नहीं किया, आगे बढ़ा, एरर है और कर्सर वहीं पे है, नाम दे दिया, तब आगे यहाँ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी ने पासवर्ड नहीं दिया था, देखिए एरर, और फोकस देखिए वहीं पर है। फिर 1 2 दे के आगे जा रहे हैं, फिर भी एरर। अब दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गए, ये देखिए एरर नहीं है। अब देखिए वो एरर हटा नहीं, वो एरर इसलिए नहीं हटा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एल्स नहीं लगाया था। तो अब आइए आज उसका एल्स भी लगा लेते हैं, लाइक चेक पासवर्ड, ये है चेक पासवर्ड फंक्शन। तो इसके एल्स पे हम लोगों को क्या करना है, फिर से यही काम करना है, बस इसको एम्प्टी कर देना है, क्योंकि यही तो इनिशियलाइज हो रहा है। इसको एम्प्टी कर देंगे तो जो मैसेज है वो हट जाएगा, ऐसा कर दिया। अब आइए रिफ्रेश करते हैं, नेम दिया, आगे बढ़ गए, पासवर्ड गलत दिया, ये देखिए ओके, इंडेंटेशन एरर हो गया सर। इंडेंटेशन एरर यहाँ नहीं होता है, यहाँ करली ब्रेसेस नहीं लगा, यस सर, कर्ली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस ये देखिए लगा दिया, करली ब्रेसेस हमारा नहीं लगा हुआ था, दैट्स वाई। चलिए कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। तो ये देखिए DK लिखा और आगे बढ़ते हैं, पासवर्ड दिया 1 2 और ये देखिए अभी भी है ओके। नीचे लेट एक मी चेक, एक्स्ट्रा है सर, नीचे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है सर। एक एक्स्ट्रा है। ओके ओके, अच्छा वो इफ वाले के अंदर ही हमने राइट कर दिया था, कोई बात नहीं। चेक दिस, DK 1 2 और एरर, नाउ इट्स फाइन। 1 2 3 4 5 6 7 अभी भी देखिए एरर, 8 दे दिया, अब एरर खत्म। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए एक और बनाने जा रहे हैं ऑन फोकस पे, तीनों पे हम लोग बता रहे हैं, तो ऑन फोकस पे बता रहे हैं। अब एक और बनाएंगे, चेक कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये बनाएंगे हमारा फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन बनाएंगे तो अब इसमें क्या करना है, इस फंक्शन में पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए, और सेम होना चाहिए। तो देखिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और इस जगह पे लिख लिया फंक्शन और यहाँ बता दिया कंफर्म पासवर्ड, और इसका करली ब्रेसेस, इसका करली ब्रेसेस बंद। अब देखिए हमको एक पैराग्राफ लगाया, वैसे इस पे भी पैराग्राफ चाहिए होगा जिससे एरर दिखा सकें। देखिए इसको कॉपी कर लिया और इसी TD के बाद ये जो पासवर्ड वाली TD है, कंफर्म पासवर्ड वाली, इस कंफर्म पासवर्ड वाली TD पर पेस्ट कर रहे हैं और इसका नाम दे दे रहे हैं एरर CPWD।
देखिए नाम सिमिलर जानबूझ के ले रहे हैं कि आपको क्लियर रहे। अब अगर एरर CPWD ले रहे हैं तो उसकी भी आईडी यहाँ दे दीजिए जिससे रेड कलर से और इन लाइन में आए, तो लिख दिया एरर CPWD। तीनों के लिए डिस्प्ले इन लाइन और कलर कर दिया। अब फंक्शन पे अगर आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब फंक्शन पे हमें वैल्यूज चाहिए सबकी, पासवर्ड की भी और कंफर्म पासवर्ड की भी। तो हमने यहाँ लिख दिया document.frm डॉट, पासवर्ड का नाम है आई गेस पासवर्ड, यस पासवर्ड कंट्रोल का नाम है पासवर्ड, तो लिख दिया पासवर्ड डॉट वैल्यू। और इस पासवर्ड डॉट वैल्यू को हमने पासवर्ड नाम के वेरिएबल में ले लिया। कोई डाउट किसी को भी? No, sir. नो सर। No, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए कंफर्म पासवर्ड का नाम क्या है? कंफर्म पासवर्ड का नाम है कंफर्म पासवर्ड। जब इसका नाम कंफर्म पासवर्ड है तो इसको भी यूज करेंगे, इसकी भी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ ले लिया document.frm डॉट कंफर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज ले ली और यहाँ इफ से चेक कर लिया अगर पासवर्ड की वैल्यू इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड हो, कंफर्म पासवर्ड हो, अगर ये दोनों इक्वल होता है तब हम एरर मैसेज दिखाएंगे, और सॉरी इक्वल नहीं होगा तब मैसेज दिखाएंगे, और अगर इक्वल नहीं होता है तो हम एरर दिखाएंगे। तो एरर तो देखिए ऐसे ही दिखाना है जैसे पुराने प्रोग्राम में दिखा रहे थे इसके थ्रू, तो वैसा ही करेंगे, बस एरर का लोकेशन चेंज करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ एल्स पे, और एल्स पे अब मैसेज ये नहीं होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम, और एरर PWD पे ना हो करके मैसेज होना चाहिए एरर CPWD पे। फोकस पासवर्ड पे ना हो करके कंफर्म पासवर्ड पे होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लीजिए पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम हो जाता है, तब के केस में यहाँ पर ये होगा, और इसका जो वैल्यू है मतलब इसकी वैल्यू एम्प्टी करेंगे। ये देखिए एम्प्टी कर दिया। कोई डाउट क्लास? No, sir. No, sir. ओके आइए चेक करते हैं। देखिए आप पूरा चेक करते हैं। देखिए एरर है, नेम वही शो कर रहा है, मैंने अपना नाम दे दिया मान लीजिए, पासवर्ड पूछ रहा है, हमने दिया 1 2 3, आगे बढ़ने की कोशिश की, एरर दे रहा है एटलीस्ट एक कैरेक्टर, तो 1 2 3 दे दिया, 4 5 6 7 8 दे दिया, आगे बढ़ गए। अब देखिए पासवर्ड दे रहे हैं ABCDEFGH, कुछ ऐसा दे दिया कि 8 कैरेक्टर हो जाए, और गलत दिया है, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। देखिए एरर हो गया, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव करके और यहाँ दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट्स सी, एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. नो सर। अब देखिए वेरी गुड, अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे कोड को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट वाले कोड को ये कट कर दिया यहाँ से, और एक नई फाइल ले लिया, इस नई फाइल पे इस जावास्क्रिप्ट के पूरे कोड को सेव कर दिया, और इसको सेव करते वक्त लिख दिया माई लाइब्रेरी .js, ये मेरी लाइब्रेरी है, नाम दे दिया माई लाइब्रेरी। आपको पता है जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं? Script SRC. Script के अंदर SRC property. सर SRC इक्वल टू फिर फाइल का नाम डॉट मेरा JS। क्वेश्चन था कि किस टैग का यूज करते हैं, तो टैग होगा Script. अब अगर आपको उससे कनेक्ट करना है तो स्क्रिप्ट SRC इक्वल्स टू mylibrary.js। रिफ्रेश करिए और देखिए क्या ये काम कर रहा है, तो देखिए काम कर रहा है। एनी प्रॉब्लम एनीवन? नो सर। वेरी गुड नो सर। वेरी गुड। ये CSS हटा दिया, फाइल ले लिया नई, CSS में लिख दिया, और इस CSS को लिखने के बाद इसको सेव कर दिया, माई स्टाइल ओके, माई लिव लिख लेते हैं, माई लिव डॉट CSS इसको सेव कर दिया माई लिव नाम से। कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे क्लास? लिंक टैग का यूज करेंगे सर। लिंक टैग सर। Tag. वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ लिख लिया लिंक href इक्वल्स टू और फाइल का नाम, तो फाइल का नाम हमने दिया है mylib.css। इक्वल्स टू क्या लिखेंगे क्लास? स्टाइल शीट। Style sheet. वेरी गुड वेरी गुड। टाइप इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये लिख दिया text/css। फायदा कि हमारा कोड थोड़ा सा यहाँ पर मिनिमाइज हो गया, इतना ज्यादा बड़ा कोड नहीं हो गया, मिनिमाइज हो गया, और हमारा ये पूरा फॉर्म डिजाइन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इस सेंड बटन पे आ रहे हैं तो देखिए अभी ऑन फोकस लगाया था, इस बटन पे
सेंड वाली बटन पे ऑन फोकस लगाया था कि इसके फोकस पे इसको चेक किया जा रहा था पासवर्ड को। अब इसी पे एक इवेंट और लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते। यहाँ ऑन क्लिक पर एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं पीएनआर। पीएनआर का मतलब प्रिंट करवाने जा रहे हैं। तो पीएनआर क्या प्रिंट करना है? देखिए जनरली पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड प्रिंट नहीं किया जाता है, लेकिन मैं सबको प्रिंट कराने जा रहा हूँ। ऑन क्लिक पे पीएनआर। और आप जानते हैं कि अब तो जावास्क्रिप्ट बाहर लिखी हुई है, तो बाहर लिखा है तो इसी पे जाके आपको कोड लिखना होगा। तो फंक्शन बनाएंगे FUNCTION और फंक्शन का नाम होगा पीएनआर। इस पीएनआर फंक्शन में मैं चाहता हूँ सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएं। तो प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ यूज कर लिया डॉक्यूमेंट क्लास। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ने होल्ड कर रखा है। कांड ने रुकने के लिए बोला है। Yes. Class, is it audible to you? तो बीच बीच में सब लगा रहा है आवाज सर। बीच में म्यूट करने के लिए कहा था, प्रॉपर सुना कीजिए। मैं थोड़ा सा ऐसा था, नॉइजी था यहाँ पर, तो उस नॉइज को अभी भी आ रहा है नॉइस। कैसी नॉइज आ रही है? लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ पर। नो सर, मतलब सर घरघराहट टाइप का सर। बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो मेरी मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। और फिर आपकी बैच में ये प्रॉब्लम मुझे समझ में आई है, अभी तक और किसी बैच में नहीं आई। ये या नहीं आ रही है? ऑडिबल है या नहीं है क्लास? यस सर। यस सर। दैट्स गुड। ऑडिबल सर। यस दैट्स गुड। और देखिए मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, शायद स्टार्ट में भी बताया होगा, ऑनलाइन बैचेस से बेस्ट बैच मुझे नहीं लगता कि है। रीजन बिहाइंड इट, अब ऐसा नहीं ऑफलाइन क्लास खराब होती है, मैंने ये नहीं कहा। ऑफलाइन क्लास से हम फैमिलियर हैं, हर चीज अच्छी होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ये सोचता है कि ऑनलाइन क्लास खराब है, तो खराब नहीं है। आप अगर इंटरनेट, मैंने पहले भी बताया, इंटरनेट आप बचाइए, हर आदमी को बचाना चाहिए। आप इंटरनेट अगर आप पूरा मोबाइल में ही कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल से ही कनेक्ट कर रहे हैं, तो मोबाइल से अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको बचा करके रखिए। आप सोचते हैं व्हाट्सएप भी यूज कर लें, यूट्यूब भी यूज कर लें और इवनिंग में क्लास हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो जब इंटरनेट आप बचा के रखेंगे तो आपका नेट अच्छा चलेगा, द फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये कि आपको सिर्फ एक इंटरनेट का ही इशू होता है ऑनलाइन क्लास में, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैंने एक बार इन सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस किया था। लाइक आप लेट पहुंच रहे हैं, आपको क्लास से भगा दिया गया, आप आ रहे हैं बारिश होने लगी, आप आ रहे हैं कहीं जाम लग गया, आप आ रहे हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी सब चीजें जो होती है ना, ये सब ऑफलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम है। इवन वहां पर भी क्लास में इंटर कर जाने के बाद भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ भी तो ऑनलाइन हम इंटरनेट नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इंटरनेट का ही एक इशू है, पर ऑफलाइन क्लासेस की बहुत सारे इश्यूज हैं। अब क्लास में आप गए, अब उस क्लास में जहाँ आप गए हैं वहां पर आपका बोर्ड, जिस बोर्ड पर सर पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड विजिबल नहीं है, उस पर लाइट शाइन कर रहा है, या प्रोजेक्टर खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, या पावर कट हो गया। तो देखिए नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे ना, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफलाइन में ज्यादा है। लेकिन आप फैमिलियर हैं उस प्रॉब्लम से, इसलिए आपको वो प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास में एक प्रॉब्लम है इंटरनेट, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम लगता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 4:15 की क्लास है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो 4-5 पर सो के उठते होंगे, और कोई लाइक ड्रेसिंग नहीं करना है, बाथरूम जाकर के नहाना नहीं है, और आपको प्रिपेयर होके हाफ एन आवर का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बहुत सारे फायदे हैं ऑनलाइन क्लासेस के। ऑफलाइन क्लासेस का देखिए दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ऑफलाइन क्लासेस हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि ऑफलाइन, बट नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे ना तो ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मींस सबसे मेन चीज कि आपको उसके लिए प्रिपेयर होके जाना है। और ये जितनी प्रॉब्लम है वो सब सडन वाली प्रॉब्लम है, सब सडन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर एक ही चीज है, क्या करके वॉइस क्लियर नहीं है सर। नहीं आ रहा सर। सर आपकी आवाज नहीं। क्या बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही? सर वही रगड़ाने जैसी आवाजें आ रही है नेटवर्क वाली। सर वायर ये वायर प्रॉब्लम नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, वायर प्रॉब्लम नहीं है। सर ठीक आ रहा है। Is it audible now? यस यस सर। Okay, fine.
फाइन। सो मेरा यही कहना है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स से ज़्यादा प्रॉब्लम ऑफलाइन क्लासेस में है। बट ठीक है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन आपको जो भी पसंद हो, डजेंट मैटर। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि थोड़ा सा चीज़ों को तो हर जगह मैनेज करना है। सीखना है तो भाई देखिए बहुत कुछ करना होता है। जो सीखना नहीं चाहता है वो कुछ नहीं करेगा, बट सीखने वाला आदमी तो कैसे भी करेगा। तो देखिए अब मैं प्रिंटिंग के लिए जा रहा हूँ फिलहाल, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। देखिए मैं नेम प्रिंट करना चाहता हूँ। क्या लिखे? नेम, नेम क्लास ऑडिबल सर। क्लियर ओके सर, ऑडिबल सर, ऑडिबल सर। ओके फाइन, दैट्स गुड। सो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट। ओके, एक काम करते हैं, पहले सारी वैल्यूज को ले लेते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा ना लिखना हो उस पर्टिकुलर लाइन पे। तो हमने कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या नेम नाम का ही कंट्रोल है हमारे पास। यस, नेम नाम का ही है। इज इट क्लियर क्लास? क्लास इज इट क्लियर? नेम। यस सर, यस वेरी सर। गुड, यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए ऐसे ही ले रहे हैं, पासवर्ड लेना है। यहाँ लिख दिया पासवर्ड। यू नो कि पासवर्ड को लेने के लिए लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट frm डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू, ऐसा लिख लिया। फिर हमें लगता है कंफर्म पासवर्ड भी चाहिए, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लिया। कंफर्म पासवर्ड के लिए यहाँ सी पासवर्ड लिख ले रहे हैं, लेकिन यहाँ सी पासवर्ड नहीं लिख सकते बिकॉज कंट्रोल का नाम है कंफर्म पासवर्ड। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए नेम प्रिंट करा दिया। ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो हमने यहाँ प्रिंटिंग कर दी। यहाँ मैं चाहता हूँ लिख के आ जाए पासवर्ड। यहाँ लिख के आ जाए पासवर्ड प्रिंट करना है। यहाँ लिख दिया पासवर्ड फील्ड। फिर कंफर्म पासवर्ड चाहिए, यहाँ लिख लिया सी पासवर्ड। और यहाँ लिख लिया कंफर्म पासवर्ड कोलन दिस। अब आइए एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या हम लोग आए हैं। तो देखिए रिफ्रेश कर लिया पेज को। अब आइए यहाँ एंट्री नहीं किए बिना आगे बढ़ते हैं, तो एरर है, दे दिया। फिर आगे जाते हैं, देखिए एरर है, हमने दे दिया यहाँ पासवर्ड। फिर यहाँ आते हैं, गलत पासवर्ड दे देते हैं, देखिए एरर है, बराबर आगे बढ़ गए। अब ये देखिए सही है। कोई डाउट किसी को भी? वेरी गुड। अब ये सेंड कर रहे हैं, देखिए सेंड किया तो सब प्रिंट हो गया, और आपको ये भी प्रिंट होके मिल रहा होगा कि मैंने क्या एंटर किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रिंटिंग ऐसी ना हो। अब ध्यान दीजिएगा, क्या आपको याद है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हम लोग HTML कोड को प्रिंट कर सकते हैं? यस सर। यस सर। डबल फोटो। क्या HTML कोड को डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कर सकते हैं क्लास? यस सर। यस बहुत कम रिप्लाई मुझे मिल रहे हैं, और रिप्लाई अगर कम मिल रहा है तो मुझे शायद ज़्यादा नहीं अंदर जाना चाहिए। कर सकते हैं। वेरी गुड रोहन। कर सकते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही रिप्लाई किया कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, इंटरैक्टिव क्लास ही मुझे पसंद आती है। ऐसा नहीं आता है कि मैं एक को पढ़ा रहा हूँ, एक को पढ़ाने वाला काम ना आज तक किया है ना कर पाएंगे। मैं नहीं बदल सकता, मैं ये हर बार कहता हूँ, आपने आपको बदल लीजिए। सो लेट्स सी, यहाँ मैं लगा रहा हूँ टेबल टैग, और टेबल टैग लगा रहे हैं तो यू नो कि टेबल टैग लिख सकते हैं। बॉर्डर दे रहे हैं 1 साइज का, और यहाँ अलाइन लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बाहर डबल कोट लगा है तो अंदर सिंगल कोट, ये लगा लिया टेबल टैग। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्लास। ये देखिए यहाँ पे एक TD में नेम लिख दिया, और एक और TD ओपन किया, उस TD के अंदर ये वाला नेम कॉन्केटिनेट हो जाएगा, और फिर कॉन्केटिनेट करेंगे TD क्लोज और TR क्लोज, कुछ ऐसा। देखिए ध्यान से देखिएगा क्लास में क्या कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब आपको PHP में भी काम आएगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हम लोगों को पता था कि डबल कोट्स के अंदर पूरे HTML कोड लिखते हैं, तो ये जो एक सेल बना लिया यहाँ नेम के लिए, और ये सेल बंद हो गई। फिर दूसरा सेल ओपन किया, ये TD, अब उसके अंदर नेम नहीं लिख सकते थे, तो उसको कॉन्केटिनेट करके नेम को प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, और फिर ज्वाइन करा देंगे एक TD और TR। तो कितने रो और कितने सेल बन जाएगा क्लास?
एक रो एक रो एक दो रो सेल। एक रो दो सेल। वेरी गुड, एक रो दो सेल। ये देखिए ऐसा ही यहाँ भी कर ले रहे हैं, ऐसा कर लिया, फिर यहाँ लिखा टीडी और फिर यहाँ पर भी कॉन्केटिनेट कर दिया, टीडी को क्लोज कर दिया और यहाँ टीआर को क्लोज कर दिया, यानी हमारी ये भी रो क्रिएट हो गई। जब ये हो, हाँ जी सब बोलिए। सिंगल वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बोल रही हैं? डबल कोट्स में क्या नहीं है? मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, नेम और पासवर्ड। मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। व्हाट यू आर सेइंग कि नेम और पासवर्ड? कौन बात कर रहा था? प्लीज टेल मी, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में अगर कोई दिक्कत है। क्लास देखिए इतना बड़ा कोड लिख लिया, क्या किसी को कोई इशू है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। वेरी गुड, नो सर। वेरी गुड। ये देखिए रिफ्रेश करते हैं और अब यहाँ एंटर करते हैं हम नेम दीपक, पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कर दिया सेंड। ये देखिए आ गया ऐसा डेटा। एनी डाउट एनीवन? नो सर। नो सर। नो सर। वेरी गुड नो और सर। वेरी गुड। तो अब आपका कोड भी बहुत सारा हो गया और ये HTML का पेज भी बहुत सारा हो गया। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अब कल की डेट तक प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। 1 बाय 1 एक एक को ध्यान देंगे क्योंकि नाम का सेम है तो उसको ध्यान दीजिएगा। इन्होंने लिखा है दिव्या ने कि नेम और पासवर्ड पर सिंगल कोट नहीं यूज होगा। कहीं भी सिंगल कोट नहीं यूज हुआ है। सिंगल कोट कहीं यूज हुआ है क्या उस कोड में? वहां पर कहीं भी सिंगल कोट नहीं यूज हुआ है। दिव्या बी केयरफुल। क्लास हो गया ये स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोग सेकंड स्क्रीन को स्क्रीनशॉट करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट करिए। डन सर। डन सर। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। CSS का स्क्रीनशॉट करिएगा, वेट करिए मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूं। इसका स्क्रीनशॉट करिए। डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। इसका स्क्रीनशॉट करिए। डन क्लास? डन सर। यस सर। वेरी गुड। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट करिए। वेट अ मिनट, अब करिए। डन क्लास? यस सर। यस सर। यस वेरी सर। गुड। इसका भी स्क्रीनशॉट करिएगा। डन सर। डन सर। वेरी गुड। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दिस इज द लास्ट स्क्रीन। डन सर। डन सर। डन सर। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। Very good. So we are moving ahead. Now we are going for some more point. इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो 105 का काम कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। 10, हाँ बताइए सर। उसमें अगर अलर्ट पे मैसेज अगर दिखाना होता कि पासवर्ड दिखाते रहिए अलर्ट करके। अलर्ट नहीं कॉल होगा क्या? सर तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि पासवर्ड को दिखाना हो, शुड नॉट मैच, ये वाला अलर्ट में दिखाना होता था। रमाकांत देखिए बेटा, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके माइंड में फालतू वाले, उसको पहले एक बार करके देखा कीजिए, बिना कि ये कुछ मत पूछा कीजिए। अब ये क्या बात हुई ये बताइए, इसमें अलर्ट कॉल नहीं होगा क्यों? रमाकांत बताइए क्यों ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, क्या अलर्ट यहाँ कॉल नहीं होगा? होगा सर, तो बट कहाँ पे यूज करेंगे? कहाँ पे यूज करेंगे मतलब? चेक कर लेंगे सर। मतलब एक बार बताइए क्या पूछना चाह रहे थे, अलर्ट क्यों पूछा आपने यहाँ पे, ये बताइए। सर अलर्ट में दिखाते तो अच्छा रहता। नहीं तो क्या अलर्ट में हम लोग आज तक मैसेज नहीं दिखाए हैं? यस सर, दिखाया है। तो फिर जहाँ document.getElement_by_id लिखा है वहाँ लगाइए अलर्ट, नहीं काम करेगा? सर करेगा, वैसे कंफर्म होने के लिए सर पूछ लीजिए। ये कंफर्म नहीं, इसको कहते हैं काम करना। खुद से करिए ना, करके देखिए, नहीं हो तो बताइए कि सर नहीं हुआ। ओके सर। अब अलर्ट, अब ऐसा थोड़ा ना होता कि आपको 2+2 पढ़ा दिया है तो 5+5 भी पढ़ाएंगे, फिर 2+3 भी पढ़ाएंगे। एक पढ़ाया है, आपको लगता है सर हमें वैसे ही दिखाना है, करके देखिए।
div बना दिया शो हाइड फॉर्मेट में, हम वैसा दिखा सकते हैं, एक पूरी पूरी div शो हाइड करवा दें वहाँ पे, वो भी दिखा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। और आपको बता दें अलर्ट बॉक्स कम से कम यूज किया जाता है, वो ऊपर आता है। वेब पेज जहाँ बना हो बड़ा पेज होगा तो कैसे करेंगे रमन? फिर पता लगा इसलिए डाउट था। अच्छा, आपको पता है कि अलर्ट बॉक्स ऊपर आता है? सर अभी तक तो मैंने देखा कि ऊपर ही आता है अलर्ट। तो ऊपर आता है तो उसमें डाउट क्या हो गया कि अलर्ट बॉक्स यहाँ नहीं लग पाएगा, ऐसा? रमाकांत सर ट्राई कर लेंगे एक बार। रमाकांत, जितनी आपकी एज होगी ना उतने हजार स्टूडेंट कम से कम पढ़ाए होंगे। बात समझिए, डाउट ये नहीं होती है कि सर यहाँ अलर्ट लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। मैं तो आपको एक व्यू और बता रहा हूँ, अलर्ट तो यहाँ लगेगा ही लगेगा, लगाइए आप अलर्ट। लेकिन मैं ये बता रहा था कि पेज आपका अगर बड़ा हो गया और आप लास्ट वाला एरर चेक कर रहे होंगे तो हर बार ऊपर आ रहा होगा, उसको क्लिक करो फिर कर्सर नीचे ले जाओ, फिर ऊपर ओके करो फिर कर्सर नीचे ले जाओ, तो ये यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगा। कभी एरर देखा है अलर्ट बॉक्स पे कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमेशा अलर्ट बॉक्स पे एरर आता हो? तो इसके पीछे रीजन होता है ना रमाकांत, रीजन ये होता है कि यूजर लास्ट कंट्रोल से अपना कर्सर लेके जाएगा ऊपर, ओके करेगा, फिर नीचे लाएगा, फिर उस पे लिखेगा, फिर एरर आया तो फिर ओके करेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो कीबोर्ड यूज कर रहे होंगे तो माउस भी यूज करेंगे, माउस यूज कर रहे होंगे तो भी उनको कीबोर्ड की जरूरत पड़ जाती है। कीबोर्ड से सारे टास्क होते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब उनको दिक्कत होगी ना कि हर बार अलर्ट पे ले जाओ ओके करो फिर लाओ, फिर ले जाओ ओके करो लाओ। तो मैं तो आपको ये फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि सर यही तो प्रॉब्लम आ रही है जिसको मैं इसीलिए डाउट आ रहा है। ऐसा ये डाउट थोड़े ना है, ये तो आपको बता रहा हूँ कि यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना, ये डाउट थोड़े ना है। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है रमाकांत, बिना अंडरस्टैंडिंग के हमसे क्वेश्चन मत पूछा कीजिए, क्योंकि आप कुछ भी पूछ लेंगे हवा में, तो हवा में पढ़ाने वाला काम ना करते हैं और ना पूछना। आप सोचिए, इम्प्लीमेंट करिए, किसी भी चीज को लगाने के पीछे रीजन है। और हम लोग देखिए क्लास, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रेडियो बटन कहाँ यूज करना चाहिए। हर जगह रेडियो बटन नहीं लगा लेंगे, कहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करना चाहिए, कहाँ चेक बॉक्स यूज करना चाहिए, क्योंकि तीनों का काम है मल्टीपल चॉइस लेना। हैव यू रिमेंबर क्लास मल्टीपल चॉइस? वेरी गुड। यस सर। कोई मुझे बता सकता है अगर तीनों का काम मल्टीपल चॉइस लेना है तो रेडियो बटन कब लेंगे, कब चेक बॉक्स लेंगे? यस सर। रेडियो बटन सिंगल करना रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स में मल्टी सेलेक्ट एक लोग बोलिए, एक लोग। चलिए दिव्या आप बताइए क्या बोल रहे हैं? सर रेडियो बटन जब एक सिलेक्शन करना हम लोग में से रेडियो बटन यूज करते। तो दिव्या ड्रॉप डाउन लिस्ट भी तो है जो एक सेलेक्ट करता है, उसको नहीं यूज कर सकते हैं? सर जब नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ जाते हैं Very good. ड्रॉप डाउन यूज करते। वेरी गुड। नंबर ऑफ जब आइटम्स ज्यादा होंगे तो रेडियो बटन लेना उसे कहेंगे बेवकूफी, इसलिए क्योंकि रेडियो बटन आप लेंगे तो उतना बड़ा आपका फॉर्म हो जाएगा, जितने ज्यादा ऑप्शन उतना ज्यादा रेडियो बटन, उतने ऑप्शन फॉर्म बड़ा हो जाएगा। तो करते क्या है, जब नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करते हैं, और कम आइटम है तो रेडियो बटन। और चेक बॉक्स का यूज करते हैं क्लास? मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस और पेज को मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट करना। मल्टीपल वैल्यूज, आप ये कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस पे मल्टीपल सिलेक्शन, क्योंकि तीनों ही कंट्रोल ऐसे हैं जो मल्टीपल सिलेक्शन मल्टीपल चॉइस देते हैं। तो मल्टीपल चॉइस अगर कहीं भी देना है तो यही तीन ऑप्शन, लेकिन इसको कब यूज करना है उसके पीछे रीजन है। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आई थिंक कि आप लोग ये पासवर्ड हाइड और तो भी कर लेंगे। ओके, सो अब मैं जा रहा हूँ नोटिस बोर्ड के लिए। देखिए मैं यहाँ पर HTML ले रहा हूँ, हेड की जरूरत पड़ेगी आगे, तो अभी लगा लिया है। यहाँ लिख लिया बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। देखिए इस पे मुझे नोटिस बोर्ड बनानी है, तो मैं एक डिव ले ले रहा हूँ, और इस डिव के अंदर ही हम लोग इसी डिव को कहेंगे कि हमारा नोटिस बोर्ड है। और अगर ये हमारा नोटिस बोर्ड है तो वी शुड क्रिएट सम फॉर्मेटिंग। यहाँ क्लास ले रहे हैं, और क्लास ले ले रहे हैं इसका
कंटेंट एरिया, इसका नाम दे दिया क्लास का कंटेंट एरिया, यानी ये एक नाम की क्लास बनाएंगे। तो कोई बता सकता है क्लास का क्या मतलब हुआ, क्या बताने जा रहे हैं? क्लास में सीएसएस का प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर। वेरी गुड, सीएसएस की प्रॉपर्टी नहीं, सीएसएस बताने जा रहे हैं। सीएसएस बनाने के लिए ही तो क्लास का यूज करते हैं। तो ये देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। चलिए मेरा एक क्वेश्चन है, हर्ष आप बताइए, अनम्यूट करिए। यस सर। आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस होता है? क्लास में सर जैसे एक बात डॉट मैं लगा बता के दूं, करेंगे उसको एक बात बता दूं हर्ष, एक बात बता दूं, ये मत बताइएगा कि सर हैश लगाते हैं, हैश लगा के आईडी बनाते हैं, डॉट लगा के क्लास बनाते हैं। ये बनाने का तरीका है, मैं दोनों का डिफरेंस पूछ रहा हूँ। बताइए हर्ष। आईडी में एड्रेस देके प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और क्लास में जैसे जिस क्लास का लगाएंगे उस सारे में प्रॉपर्टी लग जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं हर्ष और आलोक में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे हर्ष का नाम हर्ष है और आलोक का नाम आलोक है, यही डिफरेंस होता है। हर्ष, आई एम आस्किंग कि आईडी सेलेक्टर में और क्लास सेलेक्टर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये नहीं होता है कि डॉट लगा के बना दिया तो क्लास हो गया और हैश लगा, ये तो बनाने का तरीका है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कब आप आईडी लगाएंगे, कब क्लास लगाएंगे? जैसे अगर दो सेम टाइप का अगर रहेगा टैग और हम चाहेंगे वो दोनों में लगाने के लिए, तो हम क्लास में उस टैग को देकर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आईडी भी लगा सकते हैं, दो अलग अलग टैग पे आईडी भी सेम कर देंगे। भाई आईडी यूज नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट में, आईडी इक्वल टू आईडी नेम लिख देंगे तो अप्लाई हो जाएगा दोनों पे। उस आईडी को जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे, यानी कोडिंग में उसको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कोडिंग में यूज करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। तब और बताइए और कहाँ कर सकते हैं? जैसे सर जैसे दो टैग सेम रहेगा तो हम क्लास लगा कर करेंगे तो हमको कम कोड लिखना पड़ेगा, और दो टैग सेम रहेगा और एक ही टैग में अगर हम प्रॉपर्टी लगाना चाहेंगे तो आईडी के थ्रू कर सकते हैं। सुन लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, दोबारा ये गलती किसी से भी ना हो। क्लास मैंने आप लोग बताया था कि क्लास सेलेक्टर जब आप बनाते हैं तो क्लास सेलेक्टर जो है, यानी क्लास सेलेक्टर जो आप एक से ज्यादा बनाएंगे उसको एक ही टैग पर मल्टीपल क्लास सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होता है, एक टैग पर एक ही आईडी यूज होती है। अगर किसी आईडी आपने एक टैग पर आईडी इक्वल टू अगर यूजर नेम लिख दिया तो अब ये यूजर नेम नाम की आईडी यहाँ यूज हो गई, अब दूसरी आईडी यहाँ नहीं लगा सकते हैं। पर क्लास सेलेक्टर को एक से ज्यादा एक ही टैग पर अप्लाई किया जा सकता है। हैव यू रिमेंबर क्लास? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए कि एक ही टैग पे एक से ज्यादा क्लास लगाने का तरीका क्या होता है? स्पेस देके सर दोनों क्लास का नाम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्लास, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप लोग, स्पेस देके लिखा जाता है। वेरी गुड। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अब एक जो है यहाँ क्लास सेलेक्टर बना चुका हूँ, जिसकी हाइट विड्थ दे दिया और अभी बैकग्राउंड भी दे दिया और इसको अप्लाई भी कर दिया। देखिए अप्लाई हो गया। एंड नाउ आई वांट टू मेक सम कंटेंट हियर। तो कंटेंट क्या, दिस इज नोटिस की बात कर रहे हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म that design of web page website submitted till क्या डेट है आज? 38 सितंबर 2020। ये दे दिया एक नोटिस और ये देखिए इसको यहाँ सेव कर दिया। एक नोटिस ये बन गई और ऐसे ही नोटिस हमें ढेर सारी बनानी है। हम URL में भी दे सकते थे, बट देखिए ऐसे ही हमने ढेर सारी नोटिस बना ली और ये देखिए इसको यहाँ सेव कर लिया। मैं चाहता हूँ ये जितनी भी नोटिस हैं सब जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइन से आए, बुलेट्स के साथ आए, ये सब आप बना सकते हैं। अब आपके ऊपर है ये URL पढ़ा है आपने और यहाँ हमने LI लगा लिया, ऐसे इस पर भी LI लगा दिया, यहाँ LI को क्लोज कर दिया, ऐसे ही यहाँ भी LI लगा लिया, यहाँ LI को क्लोज कर दिया और लास्ट ये। बस आप इसको इस तरह कंसीडर करिए कि ये मेरे पास बहुत सारे नोटिस हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर वेब पेज पे हम लोग अपीयर करा रहे हैं और ये URL क्लोज कर दिया।
अब यूएल क्लोज करने के बाद इसको सेव किया और रिफ्रेश कर लिया। देखिए ऐसा लिस्ट बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये फॉर्मेटेड हो, थोड़ा अच्छा दिखे। तो अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर CSS लगा रहा हूँ, कह रहा हूँ यूएल के अंदर जो li है इसका लाइन हाइट बढ़ा लो। और मुझे पता है अभी बहुत लोगों को ये प्रॉपर्टीज याद नहीं हुई हैं, तो अब मैं किसी दिन पूछने वाला हूँ, तो सब लोग प्रिपेयर रहिएगा। अब ऐसा ना हो कि सब सिर्फ रखा हुआ है कि सर हम तो कर लेते हैं वाले स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए होते हैं। मुझे स्टूडेंट चाहिए होते हैं जो कर लेते हैं वाला कभी नहीं होता है कि सर मैं कर लेता हूँ, सर याद कर लूंगा, सर मेमोराइज कर लूंगा। ऐसी वाली यहाँ स्टडी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। यू शुड मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। तो देखिए यहाँ लाइन हाइट हमने दे दिया। अब लाइन हाइट देने के बाद मैं चाहता हूँ इसको नेविगेट कराऊं। नेविगेट इन द सेंस टॉप बॉटम टू टॉप। तो लगा दिया मार्क्यू, और मार्क्यू में डायरेक्शन दे रहे हैं। और ये डायरेक्शन देंगे, कैसे देंगे अगर टॉप पे ले जाना है तो अप। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1-2 लोग टॉप बोलिए तो मैं फिर बात करूं आप लोगों से। तो हम लोगों ने बात की डायरेक्शन क्या होता है, अप। वेरी गुड। सो लेट्स सी, ये देखिए अब ये अपवर्ड्स मूव कर रहा है। और अब आप ये तो समझ रहे होंगे कि ये अपवर्ड्स इतना ही क्यों मूव कर रहा है, कोई बता सकता है? Yes sir, because the light हाइट उतना ही कवर कर रहा है। वेरी गुड, हाइट उतना ही कवर कर रहा है। और देखिए अगर इसकी हाइट हमने 50-100 पिक्सल्स लिया है, तो हम चाहे तो मार्क्यू की भी हाइट 50-100 पिक्सल कर लें। तो ये देखिए स्टाइल के साथ ही कर रहा है। और ये कौन सी CSS लिख रहा है? inline. वेरी गुड। अब देखिए इसको रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए ये आने लगा ऐसा, यही तो चाहिए था क्लास। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए इसी नोटिस पे एक div और बना रहे हैं। इस div पे लिख रहे हैं नोटिस ऐसा, और ये div बंद कर दिया। ये देखिए इसी के अंदर ये नोटिस आ गया। अब इस नोटिस के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नाम दे दे रहे हैं हेडिंग नाम की क्लास बनाएंगे। तो हेडिंग क्लास बनाएंगे और हेडिंग की डिजाइन करेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ बना दिया डॉट हेडिंग और यहाँ बता दिया फॉर्मेट। सबसे पहला फॉर्मेट किसका जो अलाइनमेंट होगा वो सेंटर होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। लेट्स सी, इज इट क्लियर क्लास? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड। अब यहाँ देखिए लिख रहा है साइज प्रॉपर्टी, साइज ये 25 पिक्सल्स हो, सेव कर दिए। देखिए लिया, हो गया 25 पिक्सल। सर साउंड नहीं आ रहा है। टेबल Sir sound क्या क्या क्लास अभी भी नहीं आ रही? नो सर। ब्रेक हो आ रहा है सर, ब्रेक हो रहा है सर। break हो रही है sir. कोई बात नहीं। अरे class, is it audible? Yes sir. Yes sir. Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए जैसे ही हम लोगों ने इसको 40 पिक्सल क्या दिया है देख लेते हैं एक बार और। इसकी हाइट हमने दे दिया 25, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। जैसे ही दिया ये देखिए अब ये नीचे से आने लगा। और रीजन आप जानते हैं कि आपका div का इसने कुछ एरिया कवर कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये कंटेंट एरिया है, यानी ये जो ये आप कह सकते हैं ये वाला एरिया मार्क्यू वाला, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसको हम लोग कर दिए 450 बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब कुछ एरिया तो नोटिस भी कवर कर रहा है। देखिए परफेक्ट हो गया। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा और इस हेडिंग को डिजाइन करूंगा। इस हेडिंग को डिजाइन करने के लिए मैंने कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर ये अभी वाइट करके देखते हैं, फिर जरूरत पड़ने पे हम लोग चेंज कर लेंगे। कह दिया वाइट और इसको रिफ्रेश कर लिया, देखिए वाइट हो गया। बस नॉट बेटर, नॉट टू मच बेटर एक्चुअली। सो मैं थोड़ा सा इसको और चेंज कर रहा हूँ। इसको कह रहा हूँ हैज DE DC लिखा था तो थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए। देखिए हल्का सा चेंज है, बहुत हल्का सा। और बढ़ा लेते हैं,
इसको डीएफ करते हैं, डीएफ करते हैं, डीएफ करते हैं। लेट्स सी, थोड़ा और लाइटर हुआ ये। इसको करते हैं सी, सी एंड सी। चेक करते हैं। देखिए कलर वेरिएशन आपको दिख गया क्लास? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या अभी तक आप लोगों ने ये सोचा था ऐसा बनाने का? नो सर। यही तो सीखना है, यही तो सीखना है। देखिए जब तक आप डिजाइन्स पे वर्क नहीं करेंगे, जब तक सोचेंगे नहीं कि ऐसा बनाए वैसा बनाए, तब तक कहाँ मजा आने वाला है। सीखना बहुत जरूरी है। अब देखिए ऐसा कर दिया, अभी मैं और भी इस पे डिजाइन कर रहा हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। और देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग यही बनाते हैं, हर बार चेंज रहता है। आपने शायद कल का इंटरफेस जो देखा होगा वो चेंज है, आज चेंज है, ये रन टाइम में चेंज कर रहा है। देखिए हो गया नोटिस, बेहतरीन नोटिस हो गई। क्लास, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। यस सर। तो अब हम डिजाइन पे काम नहीं कर रहे हैं, दैट्स इनफ, बहुत हो गया डिजाइन। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, यहाँ पे मैं चाहता हूँ इवेंट लगाएं। तो देखिए एक इवेंट लगाने जा रहे हैं ऑन माउस ओवर पे। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर लगाएंगे और ऑन माउस आउट लगाएंगे। देखिए आपको बस 2 चीजें यहाँ पर और समझनी है और आपका काम हो जाएगा। तो ऑन माउस ओवर लगा दिया है और एक लगाएंगे ऑन माउस आउट। अब देखिए क्लास, 2 फंक्शन होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो मार्क्यू को स्टार्ट स्टॉप कराते हैं। तो मैं देखिए यहाँ लिख रहा हूँ दिस डॉट स्टॉप। स्टॉप का मतलब मार्क्यू जो चल रहा है वो स्टॉप हो जाए। ये बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे हम लोग बिल्ट इन फंक्शन में अलर्ट काम करते हैं, वैसे ही स्टॉप फंक्शन क्या करेगा, मार्क्यू को स्टॉप कर देगा। फिर लिखा दिस डॉट स्टार्ट, यानी बाहर जाते ही क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनीवन? नो सर। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट्स सी दी रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है? तो ये देखिए इसको रिफ्रेश कर रहे हैं और आप देखिए कर्सर ले जाते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, ये देखिए जैसे ही उस यूएल के ऊपर ले जा रहा है, ये देखिए फिर स्टार्ट स्टॉप करा ले रहे हैं। अब फिर कर्सर ले जाते हैं। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि लाइक लिंक पे आप जब जाते हैं तो रुक जाता है, फिर आप क्लिक कर देते हैं तो मूव करने लगता है। Yes, sir. यस सर। सो नाउ एनी डाउट, एनीवन? नो नो सर। नो सर। टेक द स्क्रीनशॉट। सर यस, टेक्स्ट डिसेबल करना होता, राइट क्लिक डिसेबल करना होता। हाँ करा दे रहे हैं, डोंट वरी। इसका स्क्रीनशॉट करिए भाई क्लास। डन सर। वेरी गुड। इसका भी अभी मैं और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट करिए। वेरी गुड। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट करिए। Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो क्लास, इससे पहले वाला दिखाइएगा एक बार फिर से। मतलब जो इससे पहले वाला जो था ना, वो वाला क्यों? सर वो मिस हो गया सर। क्या मैं आप लोगों से पूछता नहीं हूँ, बोल नहीं पाते हैं आप? ये बहुत गलत चीज होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप ही पसंद करता हूँ। अभी आपको जब बता रहा हूँ 1 बाय 1 करिए जाए तो करिए, करिए स्क्रीनशॉट। तो फर्स्ट वाला यही था ना? हाँ बिल्कुल, ये फ्रंट पेज है। जी सर, हो गया। हो गया। डन सर। वेरी गुड। स्क्रॉल डाउन मैं कर रहा हूँ। ये दूसरी स्क्रीन थी। हो गया क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड सर। थर्ड स्क्रीन दिखा रहे हैं, ये थी थर्ड स्क्रीन। जिसने नहीं किया तुरंत कर लीजिए। डन क्लास? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका एक बार इसको रन करा दीजिए, तब आगे मूव करते हैं हम लोग। डू इट फास्ट।
Class, do it fast. Too much time. क्लास आप लोग इतना कर लीजिएगा because we don't have the too much time. So we will meet tomorrow and we will do some more points, some more things. So thank you very much for today. We will meet tomorrow in the same time. Thanks a lot, class, and put your feedback before leaving session. Thank you very much. Lot, class, much for giving these messages. Thanks a lot. So you all can put your feedback and can leave session.